Okay, students. So I'm here today with a new video on the topic nitrogen cycle. I hope you all are doing well at home and your exams are also coming. As you all know, nitrogen cycle is one of the very important topic from the exam point of view as well. So please kindly concentrate on this topic. Okay. Now nitrogen cycle, as the name suggests, ki here we talk about the circulation of nitrogen in air, in our environment, right? Now nitrogen. What is nitrogen? Nitrogen is basically a gas, right? And what is the percentage of this gas in air? You all know that it is present 78%, right? Okay, students, 78% nitrogen present hai, but you know what? It is an inert gas. What do you mean by the term inert gas? You all know inert means which is not reactive. But if I want to make it usable, if it is inert, so it cannot be used up, right? So I want to make it usable, okay? So what the nature do? Nature convert this nitrogen gas, that is, N2, all of you knows the formula, which is inert, which cannot be used, into the usable form, and that usable form is known as nitrate. And if you talk about the formula, that is NO3 minus. Now nitrate is a compound. कैसा compound है ये? एक compound है, but it is a water soluble compound. Okay? कैसा compound है? This is a water soluble compound. तो अगर water soluble compound होगा, तो it can be easily mixed up in the soil along with the water, and then plants can easily take up this form. Okay. Now this process of conversion of nitrogen into nitrates is known as nitrogen fixation. Okay. But the question comes here is how this nitrogen fixation occur in our environment. Now see, the fixation that is going on in our environment is atmospheric nitrogen fixation. Okay. Now, atmospheric nitrogen fixation takes place by number of ways. Like, if I talk about the first way, okay. So, atmospheric nitrogen fixation कैसे होता है अब? With the help of blue-green algae. You know, blue-green algae is present in our environment, okay? With the help of rhizobium. Rhizobium क्या है? It's a type of bacteria. And कैसा bacteria है? Symbiotic bacteria है. Then azotobacter is also a type of bacteria. So all these things are present in the environment and they are converting this nitrogen into nitrate. Okay. So this is one thing. So nature, or you can say, your environment is itself doing this process. But this process is also done in industries also. Industries में कैसे करते हैं? नाइट्रोजन को रिएक्ट कराया जाता है हाइड्रोजन के साथ अंडर हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, और उसकी हेल्प से नाइट्रेट्स बनाए जाते हैं. नाउ वंस नाइट्रेट्स हैव बीन फॉर्म, नाइट्रेट्स बना गए. ये वाला जो इंडस्ट्रियल फिक्सेशन है, ये बेसिकली फर्टिलाइजर्स कंपनीज में होता है, जहां पर केमिकल फर्टिलाइजर्स बनते हैं. ओके, नाउ नाइट्रेट्स बन गए. नाउ दीज नाइट्रेट्स आर डिजोल्व्ड इन वाटर. ये वाटर में डिजोल्व हो जाएंगे एंड दे विल बी देन यूज्ड बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स. अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि प्लांट्स का तो ठीक है, प्लांट्स तो रूट से एब्जॉर्ब कर रहे हैं, एनिमल्स कैसे यूज करेंगे? तो अभी उसके ऊपर आते हैं. पहले हम बात करते हैं कि प्लांट्स कैसे यूज करेंगे. ओके, अब इस प्रोसेस को कहते हैं एसिमिलेशन. किस प्रोसेस को? द यूसेज ऑफ द नाइट्रेट्स, the process by which the plants use up the nitrates. Okay, that process is known as assimilation. तो अब nitrates क्या होते हैं? When the plants absorb these nitrates with the help of the roots from the soil, they convert it first into ammonium ion. वो क्या करते हैं? पहले इसको ब्रेक करते हैं. वाटर में डिजोल्व होगा कोई भी कंपाउंड तो आयंस फॉर्म होते हैं. आप सब पढ़ चुके हो ये चीज. तो यहाँ पर अमोनियम आयंस बनते हैं. और अमोनियम आयंस क्या करते हैं? ऑर्गेनिक एसिड, जो नेचुरल एसिड्स प्रेजेंट हैं प्लांट्स में, उनके साथ कंबाइन करते हैं और वो अमीनो एसिड्स बनाते हैं. और आप सबको पता होना चाहिए कि अमीनो एसिड्स जो होते हैं, दे आर द प्रिकर्सर्स ऑफ प्रोटीन्स. ओके, बहुत सारे अमीनो एसिड्स होते हैं, चेन्स ऑफ अमीनो एसिड्स जो होते हैं, वो कंबाइन करते हैं और प्रोटीन्स बनाते हैं. तो प्रोटीन्स बन गए. तो हमारा इसका मतलब जो प्लांट्स में जो आप प्रोटीन रिच फूड खाते हो, जैसे आप पल्सेस खाते हो, बीन्स खाते हो, तो इन सब के अंदर क्या होता है? हम क्यों खाते हैं हम लोग? वाई वी आर ईटिंग दिस? बिकॉज दे आर रिच इन प्रोटीन. तो उसके अंदर जो प्रोटीन बना वो कहाँ से बना? यही नाइट्रेट से बना. ठीक है, नाइट्रेट से प्रोटीन बना. नाउ plant will use up the nitrate for its growth as well, and it will form protein also. Now when these proteins are eaten up by animals like
आप बात कर सकते हो हर्बीवोर्स की, लाइक हर्बीवोर्स आर ईटिंग अप प्लांट्स डायरेक्टली। आप बात कर सकते हो ओमनिवोर्स की भी, आप बात कर सकते हो ह्यूमन बींग्स की भी, बिकॉज वी आर ईटिंग अप प्लांट्स डायरेक्टली। ओके, एंड देयर आर कार्निवोर्स ऑल्सो इन whose body also is getting this protein। कैसे? herbivores को प्रोटीन मिला प्लांट से, एंड herbivores are being eaten up by the carnivores, तो अल्टीमेटली वो प्रोटीन कार्निवोर में भी ट्रांसफर हुआ। ओके, सो this way assimilation of nitrate is going on। ओके, अब देखिए हमने एसिमिलेशन पढ़ लिया, ठीक है, प्लांट्स को प्रोटीन्स मिल गए और वो प्रोटीन्स जो थे वो एनिमल्स की बॉडी में भी ट्रांसफर हो गए। एनिमल्स हैव यूटिलाइज्ड देयर प्रोटीन्स। नाउ व्हाट विल हैपन when animals will excrete out their waste, right? They excrete out their waste in the form of urea, ammonia, uric acid, okay, these compounds. And even when the animals die, not only animals, when even plants also die, then their dead bodies, okay, that means waste product में क्या क्या आ जाएगा? One is the waste product which is being excreted by the animals, and second is their dead bodies, okay, for plants and animals, both of them are being decomposed। आप सबको पता है बैक्टीरिया और फंजाई सबसे अच्छे डिकम्पोजर्स हैं एनवायरमेंट के। सो यहाँ पर बैक्टीरिया एंड फंजाई इनको डिकम्पोज करेंगे एंड दे विल कन्वर्ट इट इनटू अमोनिया एंड अमोनियम कंपाउंड्स। सो बेसिकली अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो प्रोटीन्स थे वो किस में कन्वर्ट हो गए? अमोनिया में, एक और नई फॉर्म में कन्वर्ट हुए अमोनिया। अब आप इसका सब लोग फॉर्मूला याद रखेंगे अमोनिया का, NH3। अब देखिए इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं अमोनिफिकेशन। ओके, नाउ अमोनिया बनने के बाद व्हाट विल हैपन, सिंस अभी ये सब कुछ कहां पर है? सॉइल में ही है। So this ammonia and ammonium compounds will be acted upon by another bacteria which is known as Nitrosomonas। Nitrosomonas is also a type of bacteria and it is also present in the soil। ये बैक्टीरिया क्या करता है? अमोनिया को एक और फॉर्म में कन्वर्ट करता है, उसको रिड्यूस कर देता है, और एक फॉर्म आती है नाइट्राइट, जिसका फॉर्मूला होता है NO2-। ठीक है, नाइट्राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल नाइट्राइट will be formed from ammonia। This process is known as nitrification। हम इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? नाइट्रिफिकेशन। और नाइट्राइट बनने के बाद then one more bacteria is there in the soil which is known as nitrobacter, which will act upon the body of the nitrite and will convert it into nitrate। अब देखिए, अब वापस से वहीं आ गए नाइट्रेट्स पे, और नाइट्रेट्स का फॉर्मूला मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था NO3-। तो यहां पर इसका मतलब जो अमोनिया है पहले वो नाइट्राइट में कन्वर्ट हुआ, ओके, और नाइट्राइट जो थे वो नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हुए। अब क्या होगा? नाइट्रेट्स, लेकिन नाइट्रेट्स को हम अभी एनवायरनमेंट में नहीं भेज सकते। हमने कहां से लिया था नाइट्रेट? बेसिकली नाइट्रोजन से लिया था। वो नाइट्रोजन कहां प्रेजेंट था? एयर में प्रेजेंट था। ठीक है, तो दैट मीन्स हमें अब उस नाइट्रेट को वापस देना है एनवायरनमेंट को, एयर को। तो हमें नाइट्रेट को फिर से कन्वर्ट करना पड़ेगा फ्री नाइट्रोजन में, और उसका काम कौन करेगा? स्यूडोमोनास, वन मोर बैक्टीरिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो द रोल ऑफ बैक्टीरिया इन द नाइट्रोजन साइकिल। बैक्टीरिया प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन परफॉर्मिंग दिस नाइट्रोजन साइकिल। ओके, now conversion of nitrates will occur into free nitrogen gas with the help of the bacteria Pseudomonas, and we will call it as denitrification। तो इसका मतलब 5 स्टेप, अगर मैं इसको समराइज करूं इस पूरे साइकिल को, इफ आई समराइज दिस एंटायर प्रोसेस, तो आप लोग प्लीज क्विकली आप लोग इसको कैसे समराइज करेंगे, कैसे अंडरस्टैंड करेंगे? देखिए, सबसे पहले आपने क्या किया था? स्टेप 1 नाइट्रोजन फिक्सेशन किया था। ठीक है, सबसे पहले आपने बात करी नाइट्रोजन फिक्सेशन की, और नाइट्रोजन फिक्सेशन में आपने क्या किया था? N2 को कन्वर्ट किया था NO3- में, नाइट्रेट्स में। ठीक है, उसके बाद आपने NO3-, अब आपके पास यहां पर क्या आ गया? NO3-। ठीक है, नाइट्रोजन से NO3- आ गया। NO3- को आपने किसके अंदर कन्वर्ट किया था? प्रोटीन्स में कन्वर्ट किया था। ठीक है, एसिमिलेशन किया था अमीनो एसिड से। प्रोटीन्स को बनाने के बाद जब वेस्ट प्रोड्यूस हुआ तो आपको मिला था यूरिया, यूरिक एसिड। ठीक है, तो वहां से हमने बैक्टीरिया और फंजाई की मदद से, विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई, हमने इसको किसमें कन्वर्ट कर लिया? अमोनिया में। अमोनिफिकेशन किया था हमने। अब अमोनिया के बाद
अमोनिया को हमने किसके अंदर कन्वर्ट किया था, फिर नाइट्राइट्स में, ठीक है। फिर हमने इसको कन्वर्ट किया था नाइट्रेट्स में, और उसके बाद हमने इसको कन्वर्ट किया था नाइट्रोजन में। देखिए फिर से आपका नाइट्रोजन आ गया, ठीक है। सो दिस इज हाउ द सर्कुलेशन ऑफ नाइट्रोजन टेक्स प्लेस इन द एनवायरमेंट, एंड दिस नाइट्रोजन साइकिल इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर ये नाइट्रोजन साइकिल नहीं होता तो आपकी बॉडी के जितने भी टिश्यूज हैं, आपकी जो मसल्स फॉर्म होती है प्रोटीन से बनती हैं, सो दे विल नॉट बी फॉर्म्ड, ओके, they will not be formed. So this is how nitrogen cycle occur. So please let me know in the comment box if you face any difficulty in this topic, and please let me know the other topics also which you want me to do. Okay, bye bye.